Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Today I will teach you sedative and hypnotics. The next poisons. Last time I will teach you uh, uh, phosphates and another poisons, Datura poisons. Today sedative and hypnotics poisons. Sedative means the drugs that produce the calming effect on the central nervous systems, while the hypnotics are those drugs that produce sleeps. You will usually see that some boys and girls use diazepams, aspirin, and like that of 81 tablets for suicidal purpose, and some in other purpose, right, like that of rape and robbery cases. Diazepams classes included the hypnotic drugs. Under following conditions, what are the signs symptoms of sedative and hypnotics? What are the medical legal importance? What are the fatal dose? What are the fatal period? What is the treatment of the sedative and hypnotics, in which uh, antidotes is very important. Now we start. Sedatives. Sedatives are the drugs which produce a calming effect on the central nervous systems. Hypnotics are the drugs which produce sleep. The important substances in these groups are chloral hydrate and barbiturates. Chloral hydrate characteristics colorless crystalline substance है, bitter sweet but nauseous taste and aromatic smell है. Powerful and reliable hypnotics है. In small doses it produces natural sleep. In a large doses of 5 to 6 grams, it is a depressant of the central nervous systems and paralyzes the vital centers. आपने इमरजेंसी में भी देखा होगा when patient complains severe pain या after post op सर्जरी उसकी हुई हो तो हम diazepams या टिन्स वगैरह उसको लगाते हैं, तो वो डाइल्यूट करके लगाया जाता है. इमरजेंसीज में काम किया हो तो वो इसको डाइल्यूट करके लगाते हैं, क्योंकि ये फौरी तौर पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस कर देता है, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी मसल्स पैरालाइज हो जाते हैं, कार्डिक सेंटर जो है वो डिप्रेस हो जाता है और पेशेंट की डेथ हो सकती है, इसलिए इसको डाइल्यूटेड फॉर्म में लगाया जाता है. In large forms, 5 to 6 grams, it is a depressant of central nervous systems and paralyzes the vital centers. Symptoms and signs. It is rapidly absorbed from the stomach, small intestines and rectum. When ingested, there is a retrosternal burning sensations, nausea, vomiting, drowsiness, gastritis. These are all features of the sedatives and hypnotics. The blood pressure falls, respirations become slow and shallow. Death result from paralysis of the respiratory and cardiac centers. Skin rashes is also another very important point. Prolonged use of chloral hydrate produce tolerance and may leads to addictions. जो लोग बहुत ज़्यादा ये diazepams की गोलियां यूज करते हैं या Xanax वगैरह की यूज की जाती हैं टैबलेट्स, या लेक्सिलियम की टैबलेट्स आपने नाम सुना होगा, या जो कि डिप्रेशन में लोग लेते हैं ड्यूरिंग एग्जाम्स के डेज में भी, ये बहुत ज़्यादा अगर यूज किया जाए तो इसकी वजह से एडिक्शंस भी हो सकती है और इंसान जो है उसकी डेथ भी हो सकती है. Prolonged use of chloral hydrate produce tolerance and may leads to addiction, physical dependence. The symptoms are mainly digestive, nervous, cardiac, and cutaneous pain, nausea, vomiting, and gastritis is the another features. Erythematous and urticaria rashes along with the tremors, convulsions, and depressions. That is the features. Fatal dose is 5 grams. Fatal period 8 to 12 hours, but may be delayed for 2 to 3 days. Treatment care, the stomach should be washed with warm water containing adultly. It will decompose the unabsorbed chloral hydrate. Stomach wash का देना आप normal saline से भी wash कर सकते हैं, या इसका कोई specific antidote नहीं है chloral hydrate का. Hemodialysis भी आप कर सकते हैं, उसका peritoneal dialysis या hemodialysis symptomatic treatment है.
अगर एब्डोमिनल पेन है तो आप एंटीस्पाज्मोटिक दे देंगे, वॉमिटिंग है तो एंटी emetic drugs दे देंगे. Postmortem appearance, the peculiar odor of the chlorohydrate may be perceived in the stomach contents, irritations of breast mucosa. Death is the postmortem features. In chronic poisoning में fatty degenerations of liver, kidney, heart and other internal organs, ये सारे स्टेज जो है फीचर्स है. मेडिकल फीचर्स में इसको एक्सीडेंटल पॉइजनिंग के तौर पर भी ले सकते हैं, रेयरली यूज्ड फॉर सुसाइडल, लेकिन ज़्यादातर सुसाइडल ही यूज होता है. एक्सीडेंटल टू बियर, बियर में ये डाल के ज़्यादा डोज तो इसको होमिसाइडल इंटेंट के लिए भी यूज किया जाता है. क्लोरल हाइड्रेट समटाइम नोन एज ड्राई वाइन इज यूज्ड इन अल्कोहल टू प्रोड्यूस स्लीप. ठीक है, उसमें यूज है. इट्स एक्शन इज सो रैपिड दैट इट हैज बीन गिवन द नेम ऑफ नॉकआउट ड्रॉप्स. बहुत ज़्यादा तेजी से इफेक्ट होता है. रैंडम से विक्टिम ऑफ रॉबरी or rape, suddenly helpless, long continued use leads to addictions. बहुत ज़्यादा हम यूज नहीं करते कि एडिक्शंस वगैरह ये हो जाती है. एंड अदर पॉइजन्स इज बारबिचुरेट्स पॉइजन्स. अभी मैंने आपको पीछे सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स पढ़ाया, अभी मैं आपको बारबिचुरेट्स पॉइजन्स पढ़ाऊंगा. इसके साइंस फीचर्स या आपने फार्माकोलॉजी में भी इसकी क्लासिफिकेशन पढ़ी होगी कि लॉन्ग एक्टिंग या शॉर्ट एक्टिंग या इस तरह के मीडियम एक्टिंग बारबिचुरेट्स हैं. यहाँ पर भी बारबिचुरेट्स यूज किए जाते हैं. बारबिचुरेट्स दीज कंपाउंड्स आर यूज एज सेडेटिव, हिप्नोटिक्स के तौर पे यूज होते हैं. व्हेन गिवन इंट्रावीनसली एज एनेस्थेटिक यूज किए जाते हैं. दे आर आल्सो यूज्ड इन साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स, एपिलेप्सी एंड स्ट्रिक्नीन पॉइजनिंग. स्ट्रिक्नीन पॉइजनिंग इज नोन एज नट्स वोमिटर पॉइजनिंग में यूज किए जाते हैं. Barbiturates are classified into 4 groups as follows, depending on whether their action is long, intermediate, short acting या ultra short acting. ये barbiturates की classifications है. Long acting barbiturates effects from 1 to 8 hours. Fatal dose 3 to 4 grams है. Barbitone इसमें white tablets है. Barbitone sodiums ये इसकी आगे further क्लासिफिकेशन है. जैसे आप फार्माकोलॉजी में क्लासिफिकेशन किसी भी ड्रग्स की देखते हैं, यहाँ पर भी बारबिचुरेट्स की क्लासिफिकेशन है. फिनोबार्बिटोन है, मिथाइल फिनोबार्बिटोन है. इंटरमीडिएट एक्शन जो इफेक्ट्स फ्रॉम हाफ टू 4 आवर्स में होता है. इसकी आगे फर्दर क्लासिफिकेशन एलोबार्बिटोन, माइलोबार्बिटोन, एप्रोबार्बिटोन, ब्यूटोबार्बिटोन या पेंटोबार्बिटोन. शॉर्ट एक्टिंग में आगे इफेक्ट्स फ्रॉम 15 minutes to 2 to 4 hours. Fatal dose is 1 to 2 grams है. Cyclobarbitone, hexobarbiton, Cunal और Cunal barbitones है. Ultra short acting for durations of anesthesia. Fatal dose 1 gram है. Thiopentone, sodium या मिथाइल हेक्सोबार्बिटोन. जिस तरह मैंने बताया कि फार्माकोलॉजी में क्लासिफिकेशन है, इसकी भी क्लासिफिकेशन है. आगे सिम्टम्स एंड साइंस. गिडीनेस, स्लर्ड स्पीच, ये इसके सारे साइंस सिम्टम्स हैं. ऑटोमेटिज्म, ये एमसीक्यूज में आ जाता है कि ऑटोमेटिज्म किसमें होती है. शॉर्ट पीरियड ऑफ कंफ्यूजन इनकरेक्टली कॉल्ड ऑटोमेटिज्म्स. ठीक है, ये एमसीक्यूज में आ जाता होता है बारबिचुरेट्स के पॉइजनिंग में. एक्साइटमेंट एंड डिलीरियम लीड्स टू कोमा. The limbs are flaccid, reflexes are lost हो जाते हैं. Pupils reacts to light by alternate contraction, dilatation. The face becomes cyanotic. क्योंकि आपके लंग्स पैरालाइज हो जाएंगे, आपको ऑक्सीजन ही आपके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में नहीं जाएगी, जिसकी वजह से एस्फिक्सियल साइन सिम्टम्स प्रेजेंट होंगी. ब्लड प्रेशर फॉल्स होगा क्योंकि ये सेंट्रल नर्व सिस्टम पे अटैक करके आपके जो कार्डिक एक्टिविटी है उसको स्लो करवाता है. टेम्परेचर इज सब नॉर्मल, रेस्पिरेशन इज स्लो. बावल साउंड्स आर एब्सेंट हो जाएंगे. ओलिगोयूरिया, द यूरिन कंटेनिंग एल्ब्यूमिन एंड शुगर, उस पर मुश्तमिल होगा. Barbiturates blisters are found on the sides of frictions or pressures at the inner aspects of the knee. Barbiturates blisters भी present with. Death is due to respiratory and cardiac failure in early stages or due to the edema in late stages. बाद में क्योंकि वो एल्ब्यूमिनुरिया हो जाता है, प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो एडिमा की वजह से भी लेट स्टेजेस पे उसकी डेथ हो सकती है. फेटल डोज जो है इसकी लॉन्ग एक्टिंग बारबिचुरेट्स की ये 3 to 4 grams है. मीडियम एक्टिंग की 2 to 3 grams है. शॉर्ट एक्टिंग की 1 to 2 grams है. फेटल पीरियड, commonly the patient remains in coma for 24 to 48 hours before death takes place. ट्रीटमेंट इसका क्या है.
गैस्ट्रिक लॉज, आप स्टमक वॉश करोगे विद पोटाशियम परमैंगनेट के साथ या एनिमल चारकोल के साथ, मैग्नीशियम सल्फेट के साथ, शुड बी लेफ्ट इन द स्टमक टू मिनिमाइज इंटेस्टाइनल अब्जॉर्प्शन। फुट एंड ऑफ द बेड शुड बी रेज्ड टू मेंटेन ए क्लियर एयरवेज ऑफ ऑक्सीजन, ताकि उसको ब्लड जो है सप्लाई उसके ब्रेन तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचे और रेस्पिरेटरी मसल्स और कार्डिक सेंटर जो है वो डिप्रेस ना हो। आप ब्रेन में खून की सप्लाई बढ़ाते हैं फुट एंड रेज करके, ऑक्सीजन उसको देनी चाहिए, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन में भी नेसेसरी, वो भी ज़रूरी है। फॉर सर्कुलेटरी डिप्रेशन के शॉक के लिए इंट्राविनस डोज ऑफ मेथामिनोल एट 20 मिनट्स इंटरवल के साथ देनी चाहिए, जिसकी वजह से उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। इफ़ द कोमा इज प्रोलॉन्ग, एम्फेटामिन सल्फेट देनी चाहिए। द यूरिनरी ब्लैडर रिक्वायर्स कैथेटराइजेशन, क्योंकि ये जितनी भी ड्रग्स हैं ये यूरिन लाती हैं, इसलिए उसको फोलिस भी पास कर देना चाहिए। मैनिटोल अगेन ये फ्यूरोसिमाइड है, डायूरेटिक है, ठीक है। मैनिटोल इज आल्सो यूज्ड फॉर एलिमिनेशन ऑफ बार्बिटूरेट्स। द रेस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट इज सिम्टोमेटिक है। पोस्टमार्टम अपीयरेंस में फ्रोथ इज सीन फ्रॉम द माउथ एंड नोज, residual capsule are found in the stomach, edema of the lungs and the kidney show degenerative changes in convoluted tubules. Other organs may be congested. The brain should be preserved for chemical analysis in addition to stomach, liver, spleen, kidney, blood and urine. मेडिकल लीगल इंपॉर्टेंस, सुइसाइडल पर्पस के लिए लोग मोस्टली यूज करते हैं बारबिचुरेट्स को, या एक्सीडेंटली यूज कर सकते हैं। क्रॉनिक पॉइजनिंग may occur from prolonged use of barbiturates in epilepsy or psychotherapy में यूज करते हैं। It is characterized by apathy, loss of power of concentration and other signs such as vertigo। बहुत ज़्यादा देर तक आप बारबिचुरेट्स यूज करेंगे तो आपको सर में दर्द होना शुरू हो जाएगी, ट्रेमर्स, फिट्स पड़ना शुरू हो गए, ये अटैक्सिया, आपकी जो है पोस्चर सही नहीं होगा चलने के दौरान, गेट वगैरह डिस्टर्ब होगी। Thick speech hallucinations which are usually visual, emotional, general mental deteriorations, ये सारे central nervous system के effects। The urine show albumin, sugar and cast. The treatment is the same as that of other drugs of addiction। फिर ये क्लोरल हाइड्रेट बारबिचुरेट्स, और उसके बाद पॉइजन है कैरोसिन पॉइजन, मट्टी का तेल है। ये हम यूजुअली ऑस्पी में हम रखते हैं कैरोसिन पॉइजन, और इसके फिर हम मैकेनिज्म्स ऑफ एक्शंस पूछ लेते होते हैं। Kerosene taste after injections, burning sensations in the throat, nausea, vomiting, pulky pains, that are the signs symptoms of the ये lung pulmonary edema, that is the complications of the kerosene poisoning। मट्टी का तेल है यूजुअली सुइसाइडल, घरों में बच्चे जो हैं वो गलती से पी लेते हैं कैरोसिन पॉइजनिंग, तो इसकी रेस्पिरेटरी सिम्टम्स आती हैं, साइनोसिस ऑफ द फेस या शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ बच्चों में, इस तरह के साइन सिम्टम्स आएंगे। सुइसाइडल पर्पस के लिए भी कुछ लोग इसको यूज करते हैं। द ब्रेथ ऑफ वोमिटिंग, यूरिन स्मेल ऑफ कैरोसिन, मट्टी के तेल उसके कपड़ों में से, उसके मुंह में से स्मेल आ रही होगी। द रेस्पिरेशन बिकम स्लो शैलो, साइनोसिस डेवलप हो जाएगी। एक तो इसको आइडेंटिफिकेशन का पॉइंट ये एग्जाम में आ जाता है, दूसरा इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या हो जाती है, लंग कॉम्प्लिकेशन, ब्रोंकोनमोनिया, पल्मोनरी एडिमा, ये दो आपने उसके आंसर्स लिखने हैं। व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द कैरोसिन पॉइजनिंग, ब्रोंकोनमोनिया या सिंपल निमोनिया या पल्मोनरी एडिमा। द सेंट्रल सिस्टम डिप्रेशन रिजल्ट इन वीकनेस, ड्राउजीनेस हो जाएगी, फॉलोड बाय कोमा, डेथ फ्रॉम रेस्पिरेटरी मसल्स, इनहेलेशन ऑफ फ्यूम्स काजेस हेडेक, नॉसिया, वोमिटिंग। घरों में भी जनरेटर वगैरह का स्मोक वगैरह होता है, उसमें भी कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग होती है। जैसे उसके फीचर्स होते हैं वैसे इसके फीचर्स भी कैरोसिन पॉइजनिंग के होते हैं। क्रॉनिक पॉइजनिंग में अकर्स फ्रॉम इनहेलेशन इन पर्सन्स हु हैंडल पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, पेट्रोल पंप्स के वर्कर्स जो हैं उनमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स वगैरह में, उनमें ये पॉइजनिंग हो सकती है। द सिम्टम्स आर डिजीनेस, वीकनेस, लिथार्जिक, वेट लॉस, अनीमिया, ये सारे फीचर्स हैं कैरोसिन पॉइजन। ट्रीटमेंट रिक्वायर्स आइसोलेशन ऑफ द पेशेंट फ्रॉम एक्सपोजर एंड सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट। उस पेशेंट को अलग कर देंगे और उसका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करेंगे कैरोसिन पॉइजनिंग। फेटल डोज इसकी 10 ml ऑफ कैरोसिन है, फेटल पीरियड फ्यू आवर्स है। ट्रीटमेंट आप लिक्विड पैराफिन उसको दे सकते हैं, ऑक्सीजन दे सकते हैं अगर इमरजेंसी में आप काम कर रहे हैं।
If ingested, the stomach should be washed with warm water containing 5% sodium bicarbonate. 25 ml of liquid paraffin orally दे देंगे. If the poison is inhaled, the patient should be removed to the open air and artificial respiration is given. दे देंगे. The rest of the treatment is symptomatic. Postmortem appearance में acute gastroenteritis हो जाएगा. Kerosene odor may be observed in the content of stomach and lungs. Pulmonary edema, degenerative changes in the liver, kidney हो जाएगा. Hypoplasia of the bone marrow occurs. ये भी इसकी complications है. Medical legal aspects, homicidal attempts by pouring kerosene on clothes and ignition them are common. अक्सर आपने सुना होगा घरों में मतलब किसी के चेहरे पे मिट्टी का तेल फेंक के या इस तरह आग लगा दी जाती है. मोस्ट फर्टेलिटीज आर एक्सीडेंटली, ज़्यादातर ये एक्सीडेंटल होती हैं. किसी भी पेंट वाली शॉप पे है तो कोई सिगरेट वगैरह स्मोक वगैरह करे तो वहाँ पे फायर वगैरह लग जाए, तो ये इसकी मेडिकल लीगल इंपॉर्टेंस है. द मेजोरिटी ऑफ द केसेस हैव बीन यंग चिल्ड्रन है हु हैव टेकन केरोसिन इन मिस्टेकन और फॉर वाटर्स. गलती से जो ले लेते हैं ज़्यादातर ये चिल्ड्रंस में है. ये तमाम इसके मेडिकल लीगल इंपॉर्टेंस. सो इस तरह केरोसिन पॉइजनिंग, बारबिचुरेट पॉइजनिंग और क्लोरल हाइड्रेट पॉइजनिंग ये एंड हुआ. नेक्स्ट टाइम मैं आपको